Yes, beta. We'll do question number 1 of back exercises, and the statement is 0.24 gram sample of a compound. Weight of, or you can say mass of compound is 0.24 grams. This is the mass of the compound, and it contains 0.96 gram boron. Weight of boron 0.096 gram, and weight of oxygen is equal to 0.144 gram. Okay. So this compound contains two elements in this mass, and total mass of the compound is 0.24. Okay, so the question is to calculate percentage composition of the compound. Percentage composition का मतलब होता है जो एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है उनका परसेंटेज कितना है. परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, पर्टिकुलर एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय आपको टोटल से करना. जैसे आप अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो, जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए यू डिवाइड दैट बाय टोटल मार्क्स multiplied by 100. So same we will calculate here percentage boron is equal to, boron का symbol बेटा B है, otherwise you can write the name also. Percentage of boron is mass और weight लिख देते हैं यहाँ पे. ओवर वेट ऑफ, वेट की जगह आप मास भी यूज कर सकते हो, टर्म नो प्रॉब्लम. केमिस्ट्री में इतना वो नहीं करना अपने मास और वेट में डिफरेंशिएशन. सेम थिंग यू कैन से वेट ऑफ कंपाउंड. टोटल वेट वही वेट ऑफ कंपाउंड ही है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100. वेट ऑफ बोरॉन इज 0.096 ओवर 0.24 multiplied with 100. यहाँ पे बेटा 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ 2 है. 4 टाइम्स आएगा ये और एक 0 साथ में यहाँ पर 0 आप करोगे. ठीक है, अगर हम डेसिमल प्लेसेस रिमूव करोगे, एक 0 इधर आएगी, 0 you can cancel out. 40% will be the percentage of boron, and second percentage of oxygen is equal to weight of oxygen in the compound given by weight of compound multiplied by 100. Okay, put the values. That you can also do, but हम लोग use कर लेते हैं जो भी, because sometimes more elements are present और आपको निकालने को उसका नहीं दिया हुआ, तो it's better if you calculate for both. अगर लिखा है ना जैसे क्वेश्चन में compound is found by analysis to contain this and this, means दो ही elements उसके अंदर present है. 24 0.024 multiplied by 100. ये आप सॉल्व करोगे 60% आएगा. ओके, तो this compound contains 40% boron and 60% oxygen. Next बेटा make a heading revision. Revision में हम थोड़े से numericals will discuss. Write revision. And for revision, just write one question. Calculate number of moles in the following. Calculate number of moles in the following.
3.011 multiplied by 10 raised to the power 23 atoms of oxygen. If it is asked to find number of moles in given number of atoms, which formula we need to apply? Second one, good, because you need to ask, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया वो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. गिवन इज द number of atoms, means capital N is given, small n is to be calculated. You will apply this formula. Okay, so here n will be equal to capital N की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 3.011 10 raised to the power 23 over 6.02 10 raised to the power 23. It will be 1 by 2, that is 0.5. Second, 3.4 gram of ammonia gas. 3.4 gram of ammonia gas, you need to calculate number of moles. Which formula will apply? First, N is equal to small m over capital M. Small m is given 3.4 gram. Capital M for ammonia. Ammonia has formula NH3. So nitrogen का mass 14 है plus 3 atoms of hydrogen, mass 1, 17 gram. Put the values. Small n is equal to 3.4 over 17, 0.2 mole. Yes, ammonia gas NH3, ammonium ion NH4 positive. Okay. Next question, one more, right? Calculate number of nitrogen atoms in the following. Calculate number of nitrogen atoms in the following. First one, 2.8 gram of nitrogen gas. 2.8 gram of nitrogen gas, you need to calculate number of nitrogen atoms. So firstly we'll find this, what is nitrogen gas, कैसे आप उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे. नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2 मॉलिक्यूल. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, व्हेन वी अप्लाई दिस नंबर ऑफ मास एंड एटम्स को रिलेट करना है. डायरेक्टली यू कैन अप्लाई द थर्ड फॉर्मूला, स्मॉल m ओवर कैपिटल M, कैपिटल N ओवर N0. ओके, 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस की अगर हम बात करते हो, नाइट्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है N2, तो मास ऑफ N2 विल बी 28. इसको बेटा एक दो डिफरेंट वे से आप सॉल्व कर सकते हो. अगर आप मास नाइट्रोजन गैस के लिए पुट कर रहे हो तो यहाँ 28 लोगे. ओके, बट आपको नाइट्रोजन एटम्स निकालने, अगर आप 28 यूज करते हो मास, तो आपको फिर ये जो n की वैल्यू आएगी वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की आएगी. फिर आपको एटम्स निकालने के लिए उसको ट्वाइस करना पड़ेगा. तो एक और बेटर ऑप्शन है आपके पास. आपको अगर नाइट्रोजन एटम्स निकालने ना, आप नाइट्रोजन एटम का ही मास यहाँ पुट करो गिवन मास में, एंड यू विल डायरेक्टली
find that number of atoms. So we'll put that 2.8 over 14. I am putting 14 here for nitrogen atoms. चाहे आपको गैस के लिए भी बोला है तब भी आप मास अगर 14 यूज करके करोगे you will find the value of capital N is equal to यहाँ मैंने 14 इसलिए रखा क्योंकि 14 आपको जो चीज फाइंड करनी है आप डायरेक्टली अगर उसका मास पुट करते हो तो आपको उसी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, एटम्स ही मिलेंगे. इफ यू राइट 28 हियर यू विल गेट एग्जैक्टली हाफ द नंबर ऑफ एटम्स. जितने अभी आए उससे हाफ आएंगे. वो आपको 28 यहाँ रखने पे मॉलिक्यूल्स का नंबर देंगे. आपको पूछे गए एटम्स. तो आपके पास दोनों मेथड है. अगर आप 28 पुट करते हो तो ये जो n वैल्यू आएगी उसको डबल करना पड़ेगा आपको आइटम्स निकालने के लिए, बिकॉज ये n मॉलिक्यूल्स का नंबर देगा आपको, बिकॉज यू आर पुटिंग द मास ऑफ मॉलिक्यूल itself. ठीक है. बट इफ यू पुट द मास ऑफ एटम डायरेक्टली तो n वैल्यू आपको एटम्स की ही वैल्यू देगा. तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है. अगर आप 28 यूज करते हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द आंसर विद 2. तो बाद में आएगा इतना ही आंसर, क्योंकि जब आप 28 पुट करोगे 0.1 आएगा, 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.6022 हो जाएगा. ठीक है. तब आपको 2 से मल्टीप्लाई करने पे यही आंसर मिलेगा. आंसर विल बी सेम इन बोथ ऑफ द केसेस. any method you can do. अगर हम 2 लेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा. अगर 28 लेंगे तो 28 लेके आप कर रहे हो तो आप नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हो. इसीलिए जिस चीज के निकालना आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में. दोनों मेथड्स करेक्ट है. बस ये चीज माइंड में रखना, मॉलिक्यूल्स के लिए मास रख रहे हो तो n वैल्यू कैपिटल N जो आएगी वो मॉलिक्यूल्स की वैल्यू आएगी. If you have to calculate for atoms, then directly you can put atomic mass. दोनों ways बेटा correct है. बस थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है कि आपको क्या चीज निकालनी है, आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर सकते हो. दूसरा मेथड अगर हम करते हैं तो यू कैन यूज दैट. इफ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स तो n की वैल्यू 2.8 over 28 is equal to n over n naught. तो आपको यहाँ जो n मिलेगा दैट विल बी 0.602 10⁻23. ये आपको आंसर मिल रहा है. ये आपको मिल रहे हैं नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स. n will be here molecules. Now number of nitrogen atoms. Atoms के लिए आपको करना पड़ेगा 2 multiplied by 0.6022 10⁻23. That is equal to. ठीक है. तो आंसर will be same. Depends in what way you are doing, because नाइट्रोजन गैस के लिए अगर आप मास पुट करते हो आप बॉदर नहीं कर रहे हो कि निकालने क्या है, तब आपको 28 से जो आंसर मिलेगा कैपिटल N का वो मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा. एंड ईच नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैज 2 नाइट्रोजन एटम्स. तो एटम्स निकालने के लिए आपको उसको ट्वाइस करना पड़ेगा. जैसे कल हमने एल्यूमिनियम वाले क्वेश्चन में किया था, वहां पे भी मैंने आपको बताया था अगर आप मास एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जगह डायरेक्टली एल्यूमिनियम का पुट करते हो तब वहां पे आप उस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन को कर सकते हो. मॉलिक्यूल ही होता है ये गैस लिखा हुआ. नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट ही N2 फॉर्म में करती है. अगर नाइट्रोजन एटम्स निकाल की जगह मॉलिक्यूल्स निकालने होते तब आपको ये ट्वाइस करने की जरूरत नहीं थी. यही नंबर आपको मॉलिक्यूल्स का नंबर देगा. यहाँ मैंने इसीलिए मॉलिक्यूल्स लिखा है. हियर दीज आर एटम्स बिकॉज वी आर पुटिंग एटॉमिक मास. जिस चीज का मास पुट कर रहे हो बेटा नंबर आपको वही चीज का मिलेगा. इफ यू आर पुटिंग एटॉमिक मास you will be getting number of atoms. If you are putting molecular mass you will be getting number of molecules. But to find number of atoms आपको फिर molecules से atoms बनाने पड़ेंगे कि उस एक molecule में कितने atoms है. Accordingly you need to multiply it with that number. नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है N2 गैस और नाइट्रोजन एटम्स होते हैं कैपिटल N सिंगल. एटम्स में एक ही सिंबल मतलब एक ही एटम को रिप्रेजेंट करता है ना, बट फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द एंटायर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. कितने एटम्स से वो बना हुआ है. नेक्स्ट राइट क्वेश्चन. कैलकुलेट
formula unit mass of, calculate formula unit mass of sodium carbonate dot 10H2O. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O, इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है. फॉर्मूला यूनिट मास अगेन द जस्ट टर्म इज डिफरेंट, मेथड इज सेम टू फाइंड. तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन plus 3 multiplied by atomic mass of oxygen plus 10 multiplied by molecular mass of water. molecular mass ही लिख रही हूँ water के लिए. अगर आपने atomic mass of hydrogen oxygen अलग अलग लिखना है, it's your wish. 10 टाइम्स वाटर आया तो पूरा वाटर का आपको जो 18 ग्राम याद रख लो, उसको सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर देना. देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 23 प्लस कार्बन 12, 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 18, 46, 12, 48, 180. to 86 grams. बस यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास चेंज करना है आगे. बस यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास आगे, बस सिर्फ नाम चेंज है. आज जो कंपाउंड्स आयन से बने होते हैं, एक मेटल और एक बाकी का नॉन मेटेलिक एनायंस है. कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से जो बन रहे हैं वो है आयनिक कंपाउंड्स. उनके लिए फॉर्मूला यूनिट मास यूज होता है. और जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है जिनमें दोनों नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, मेटल कोई भी नहीं है, जैसे वाटर हो गया HCl, H2SO4, और जो हमने कल एक इथाइन टर्म पढ़ा था, इथेन, ये सारे मीथेन, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स. उनके लिए टर्म मॉलिक्यूलर मास यूज होता है. ठीक है, तो टर्म्स का डिफरेंट है क्योंकि टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स केमिस्ट्री में दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स वो हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनमें आयंस बनते हैं पहले. दूसरे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ नॉन मेटेलिक एटम्स होते हैं, मेटल्स नहीं होंगे. वो एलिमेंट्स आयंस के फॉर्मेशन से नहीं बनते, वो आपस में जस्ट इलेक्ट्रॉन शेयर करके, वो आपको 10th क्लास में पता लगेगा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स कैसे होता है. ठीक है, अभी के लिए आपको दोनों टर्म्स याद रखनी है. फॉर्मूला यूनिट मास इज यूज्ड फॉर ionic compounds which are made up of metals and non-metals, whereas molecular mass term is used for all those compounds which are made up of non-metals only. कार्बन डाइऑक्साइड C एंड O दोनों नॉन मेटल्स हैं, कोई मेटल नहीं है वहां पे. ठीक है, तो वो एक तरह का कोवलेंट कंपाउंड है, उसके लिए हम टर्म मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं. बट मास का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट लिखा हुआ है, मोलर मास लिखा है या मॉलिक्यूलर मास लिखा है, आपको सेम वे में कैलकुलेशंस करनी है. ओके, नो नीड टू. वही सिर्फ बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड. यस, जो पॉलीएटॉमिक एनायन. हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. पॉलीएट मैं कह रही हूँ, एनायन से वहां पर कोई मतलब नहीं है आपको. ये कैटायन एनायन हमने जो किए हैं ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. अदरवाइज जो कंपाउंड्स बन रहे हैं वो सिंपली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. उनमें जैसे अब सल्फ्यूरिक एसिड है हो गया, तो ये कोवलेंट कंपाउंड. मेटल कोई नहीं मिलेगा आपको जिनके लिए मॉलिक्यूलर मास टर्म. अब अगला क्वेश्चन आप ये लिखो, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ sulfuric acid. Molecular mass of H2SO4, sulfuric acid. Molecular mass of H2SO4, capital L भी लिख सकते हो,
2 multiplied by atomic mass of hydrogen plus atomic mass of sulfur plus 4 multiplied by atomic mass of oxygen. Yes, Mandeep बेटा values पता है आपको atomic mass of hydrogen? So simplest है, सबसे lightest element है 1. For sulfur 32. For oxygen 16. So 2 multiplied by 1 plus 32 plus 4 multiplied by 16. 52 plus 32 plus 64. 98 gram is the mass of one molecule of sulfuric acid, that is molecular mass. That you have done this question I gave as homework, page number 40. Open it in your books. Few molecules are given there, just name note कर लो क्योंकि sometimes हम लोग names के form में भी पूछ लेते हैं. 40th question you have already done in your notebooks. Calculate the molecular masses of H2 hydrogen molecule. Write down the names only. We have already done this question as homework. Page 40 इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो बीच में ही होते हैं ना, उनके मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला वहां लिखे हैं, आप नेम भी नोट कर लो. H2 इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन गैस भी कह सकते हैं उसको, ठीक है. दोनों ही फॉर्मेट में आपको H2 टर्म यूज करना है. O2 ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. Cl2 क्लोरीन गैस और क्लोरीन मॉलिक्यूल. CO2 तो you know carbon dioxide. CH4 methane. CH4 is methane. Methane is also a gas. Next is C2H6. C2H6 is ethane gas. Next is C2H4. This is ethane gas. और कल आपने किया था C2H2, वो इथाइन गैस है, ठीक है. C2H4 is ethane gas. Then it is NH3 ammonia. Next is CH3OH methanol. फॉर्मूले बुक में है तो आपको नेम्स भी पता होने चाहिए. मीथेनॉल इज अ काइंड ऑफ एल्कोहल. जो एल्कोहल्स यूज होते हैं, जो डेली लाइफ में यूज होता है फॉर मेनी पर्पस लाइक स्पिरिट और ड्रिंकिंग पर्पस, और जो आप लोग सैनिटाइजर्स में यूज करो वो इथेनॉल है. ये उसका एक और उसी टाइप का एल्कोहल है. दिस इज कॉल्ड एज मीथेनॉल. यू मस्ट नो द नेम्स. और जो नीचे एक और क्वेश्चन है फॉर्मूला यूनिट मासेस, वहां पर जो कंपाउंड्स हैं वहां जिंक ऑक्साइड है, वो तो क्लियर हो जाता है ZnO, जिंक ऑक्साइड. देन सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम कार्बोनेट. नेम्स एट लीस्ट यू नीड टू. नहीं सारे ही करोगे. एलिमेंट्स तो यू मस्ट नो. एलिमेंट्स के बगैर पता ही नहीं लगेगा कौन सा एटम यूज हो रहा है इस कंपाउंड. मैंने कुछ एक्स्ट्रा और करवाए थे लैटिन नेम्स वाले, दैट यू आल्सो नीड टू लर्न. Yes, a few oral questions I'm going to ask. Why is symbol of sodium Na? Why is symbol of sodium Na? Yes, students, those who are sitting online, they can also tell the answer. Why is symbol of sodium Na? Sodium के spelling में कहीं Na नहीं आ रहा, but symbol is Na. Why?
Yes, Moksha. Yes, because its symbol is taken from its Latin name, which is natrium. Natrium से symbol Na है. What is the Latin name of potassium? Latin name of potassium. It's kalium. 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 Latin name of lead. Plumbum. Plum. These all names we have already discussed. Plumbum. Plum. Plumbum. Latin name of silver. Silver का symbol क्या है? Ag is the symbol. Name is argentum. Iron. Latin name of iron. Again I am writing. Natrium is for sodium. Potassium is kalium. Silver, argentum. Sorry. Next is Pb, plumbum, lead. Okay. Copper, Cu, cuprum. And iron, Fe, ferrum. Gold, Au, aurum. Is mercury, Hg, hydrogen. So these are the Latin names of elements. Elements कौन से हैं वो? Mercury, sodium, potassium, silver, lead, copper, iron, gold. Yes? These are the English names by which you know these elements, okay? And these are the symbols. अब symbols में ये जो letters आए हैं वो इस name में कहीं नहीं है. Then you need to tell that their Latin names are these. ये English name है, ये Latin names है, and few elements symbols have been taken from their Latin names. Okay? 35.5 is chlorine. हाँ तो क्लोरीन का ये 31.5 31 है फॉस्फोरस 0.5 नहीं. Yes, any doubt if you have, let me know.